ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੇ 'ਚ 3 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ 5 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਤੇ 5 ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਤੱਤ 5 ਨੇ, 5 ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜੋੜ ਹੈ। ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ 5 ਨੇ, ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ 5 ਨੇ, ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਵੀ 5 ਨੇ, ਔਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਤੇ ਅਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ 5 ਨੇ। ਅੰਨਮਈ ਕੋਸ਼, ਪ੍ਰਾਣਮਈ ਕੋਸ਼, ਮਨਮਈ ਕੋਸ਼, ਵਿਗਿਆਨਮਈ ਕੋਸ਼ ਤੇ ਅੰਤ ਦੇ ਆਨੰਦਮਈ ਕੋਸ਼। ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਸਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 5 ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸਿਰਫ 5 ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਨਹੀਂ, 5 ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੋੜ ਹਾਂ। ਫਿਰ 5 ਇੰਦਰੇ ਨੇ, 5 ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ ਨੇ, 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਬਲ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਉਹ 5 ਨੇ। ਫਿਰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ 3 ਨੇ, ਬਾਲ, ਜਵਾਨੀ ਔਰ ਬਿਰਧ ਫੁਨ, 3 ਅਵਸਥਾ ਜਾਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਹਾਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਨੇ। ਇੱਕ ਖਾਸ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਬਚਪਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਵਾਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੁਢੇਪਾ। ਮਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਭਾਵਕ ਹਾਲਤਾਂ ਨੇ ਉਹ 3 ਨੇ, ਰਜੋ ਗੁਣ, ਤਮੋ ਗੁਣ, ਸਤੋ ਗੁਣ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਬੈਠਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਰਜ ਗੁਣ, ਤਮ ਗੁਣ, ਸਤ ਗੁਣ ਕਹੀਏ ਇਹ ਤੇਰੀ ਸਭ ਮਾਇਆ, ਚੌਥੇ ਪਦ ਕੋ ਜਹਨ ਰਚੀਨਾ ਤਿਨੇ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ। ਮਨ ਦੀਆਂ ਸੁਭਾਵਕ ਹਾਲਤਾਂ 3 ਨੇ, ਰਜੋ, ਤਮੋ, ਸਤੋ। ਇੱਕ ਚੌਥਾ ਪਦ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ 3 ਨੇ, ਬਚਪਨਾ, ਜਵਾਨੀ, ਬੁਢੇਪਾ। ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵੀ 3 ਨੇ, ਮਾਜ਼ੀ ਹਾਲ, ਮੁਸਤਕਬਿਲ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵੀ 3 ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜਾਗਰਤ, ਸਵਪਨ, ਸਖੋਪਤ। ਇੱਕ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ, ਫਿਰ ਸੁਪਨੇ ਦੀ, ਫਿਰ ਸਖੋਪਤ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸਖੋਪਤ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਖੋਪਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸੁਸ਼ੁਪਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵੀ ਚੇਤਨਾ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ 3 ਨੇ। ਇਹ 3 ਤੇ 5 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਸੁਭਾਵਿਕ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਿਆਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਮਿਲ ਗਏ ਵੀ ਇਹ 3 ਤੇ 5 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। 3 ਆਪਣਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ 5 ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਰੀਬਨ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਬੜਾ ਮੋਟਾ ਹੈ, ਅਸਥੂਲ ਹੈ, ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਆਰੰਭ ਕਰੀਏ। ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ 3 ਮੰਨੀਆਂ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਾਲ, ਜਵਾਨੀ ਔਰ ਬਿਰਧ ਫੁਨ, 3 ਅਵਸਥਾ ਜਾਨ। ਮਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਹਾਲਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਥਮ ਸੁਣੀਏ ਤਨ ਨੂੰ। ਬਚਪਨਾ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ ਹੈ, ਬੁਢੇਪਾ ਹੈ। ਬਚਪਨੇ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਔਰ ਜਵਾਨੀ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਨੇ। ਬੁਢੇਪੇ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਪਰ ਬਚਪਨੇ ਦੇ ਕੁਝ ਔਗਣ ਵੀ ਨੇ, ਜਵਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਬੁਢੇਪੇ ਦੀ ਕੁਝ ਪਤਿਤ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 3 ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਔਗਣ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀਆਂ 3 ਹਾਲਤਾਂ ਨੇ, ਰਜੋ, ਤਮੋ, ਸੁਖ ਹੈ,
ਸਤੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਜ ਗੁਣ, ਤਮ ਗੁਣ, ਸਤਗੁਣ। ਇਸ ਦੀ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਵਿਆਖਿਆ। ਖੈਰ ਮੁਖਤਸਰ ਹੁਣ ਅਰਜ਼ ਕਰੀਏ, ਬਚਪਨੇ ਦੀਆਂ ਸੁਭਾਵਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ, ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਸੁਭਾਵਕ ਔਗਣ, ਬੁਢੇਪੇ ਦਾ ਸੁਭਾਵਕ ਪਤਤਪਣਾ, ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬਚਪਨਾ ਵਿਅਰਥ, ਜਵਾਨੀ ਵਿਅਰਥ, ਬੁਢੇਪਾ ਵਿਅਰਥ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਭਾਵਕ ਔਗਣ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਬਚਪਨੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਔਗਣ ਨੇ, ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਆਪਣੇ, ਬੁਢੇਪੇ ਦੇ ਆਪਣੇ। ਬਚਪਨੇ ਦਾ ਕੀ ਔਗਣ ਹੈ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਲਕ ਬੁੱਧ ਅਚੇਤ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਚੇਤ ਹੈ, ਨਾ ਸਮਝ ਹੈ, ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੰਬੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਲੰਬੀ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਅਚੇਤਪਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਅਚੇਤਪਣੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੈਸੇ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਏ ਤੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਸੁਣੀਏ तो ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਸੰਤ ਮੀਤ, ਸਾਵਧਾਨ ਇਕਾਗਰ ਚੇਤ। ਬੱਚਾ ਸਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਾ ਤੇ ਅਚੇਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਵਧਾਨੀ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਚੇਤਪਣਾ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਦੌਲਤ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਚੇਤਪਣੇ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਿੰਦਰਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਨਿੰਦਰਾ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਉਸਾਰੂ ਤਾਮੀਰੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਲਕ ਬੁੱਧ ਅਚੇਤ, ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਔਗਣ ਹੈ। ਤੇ ਅਚੇਤਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਸੰਸਾਰਿਕ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਨਾਮ ਤੇ ਜਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੂਝ ਤੇ ਸਮਝ ਕਿੱਥੋਂ? ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਵਕ ਔਗਣ ਮੰਨਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ, ਉਹ ਹੈ ਪਰ ਤਨ ਦੀ ਤੇ ਪਰ ਧਨ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ। ਤੀਜੇ ਪਹਿਰੇ ਰਹਿਣ ਕੇ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਧਨ ਜੋ ਬਨ ਸਿਉ ਚਿਤ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਨ ਚੇਤਈ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਬੱਧਾ ਛੁੱਟੇ ਜਿਤ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਨ ਚੇਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਬਿਖਲ ਭਇਆ ਸੰਗ ਮਾਇਆ। ਧਨ ਸਿਉ ਰੱਤਾ ਜੋਬਨ ਮੱਤਾ, ਅਹਿਲਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤੀ ਪਕੜ ਹੈ ਪਰਾਏ ਰੂਪ ਦੀ, ਪਰਾਏ ਧਨ ਦੀ, ਇਹ ਸੁਭਾਵਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਣ ਦਿੰਦੀ। ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦੇਗੀ। ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਪਤਤਪਣਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਮਾਣਨ ਦੇਗਾ। ਬੁਢੇਪੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਭਾਵਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮਨੀ ਹੈ, ਬੁੱਢਾ ਹੰਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਮਰ ਝੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦਾ। ਹੰਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਈ ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੜਿਆ। ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੜਿਆ। ਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੜਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੂਝ ਸਮਝ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਲੋਕੀ ਮੈਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੁੱਢਾ ਹੰਕਾਰੀ ਆਉਂਦਾ। ਅਚੇਤਪਣਾ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਧਨ ਤੇ ਜੋਬਨ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੁਢੇਪੇ ਦਾ ਹੰਕਾਰੀ ਜੀਵਨ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਅਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸੁਭਾਵਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੇ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੇ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਾਣਨ ਦੇਣਾ। ਅਚੇਤਪਣੇ ਚ ਕਾਹਦਾ ਆਨੰਦ? ਬੱਚਾ ਅਚੇਤ, ਬਾਲਕ ਬੁੱਧ ਅਚੇਤ। ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰੇ ਰਹਿਣ ਕੇ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਬਾਲਕ ਬੁੱਧ ਅਚੇਤ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਚਾ ਅਚੇਤ ਹੈ। ਤੇ ਵੱਡੇ ਉਸਾਰੂ ਤਾਮੀਰੀ ਕੰਮ ਅਚੇਤਪਣੇ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।
कहते अगर बच्चा नाम जपन लग पे, वाहिगुरु वाहिगुरु इतना ही करन लग पे, और कोई लंबी चौड़ी करने की लोड़ ही नहीं, तो मैं फिर अर्ज कर दिया इत्थे ते जो प्राणी गोबिंद ध्यावे, पढ़िया अनपढ़िया परमगत पावे। हो सकता है अनपढ़ बंदा संसार दे पछड़ जावे, पर धार्मिक दुनिया च नहीं पछड़ सकता, क्योंकि उत्थे पढ़ाई लिखाई चलती नहीं, उत्थे ते चलती है साधना तपस्या, अपने आप को बदलना है, जैसा गुरु कहता है वैसे अपने आप को बनाना है। ये वास्ते किसी इलम की लौड़ नहीं, हिम्मत की लौड़ है, साधना की लौड़ है। तो बच्चा किधरे वाहिगुरु वाहिगुरु ही करन लग पे, तो जैसा गुरु चाहता है वैसा ही वो अपने आप को बना ले, तो कहने बच्चा सुचेत हो जाएगा, वो अंदर अचेतपना नहीं रहेगा। संसार का इतिहास गवाह है कि प्रहलाद ते ध्रुव की उम्र कितनी है? 5 साल। और 5 साल की उम्र भी कोई उम्र है, पर वो ब्रह्म ज्ञानी ने, उन्होंने रोम रोम दे परमात्मा का वास है। ध्रुव ते प्रहलाद दियां पुरानियां गाथावां अज तक साडे देश दे प्रचलित ने। ते गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज तो पुछो बई नाम किवें जपीए, तो साहिबां दी बाणी भी कहती है राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे। बई जिवें ध्रुव ने जपया, ते ध्रुव की उम्र कितनी है? ये भी गुरु ग्रंथ साहब दे लिखा है 5 बरत को अनाथ ध्रुव बारिक, हर सिमरत अमर अटारे। 5 वरियां दा, तो 5 साल की उम्र कोई उम्र नहीं, ये अचेतपना। 5 साल की उम्र दे बंदे नूं अपनी होश नहीं आउंदी, ते रब दी होश मिल जाए। 5 साल की उम्र दे बंदे नूं अपने परिवार ते संसार की सूझ नहीं मिलती, निरंकार की सूझ मिल जाए, करतार की सूझ मिल जाए। इसका मतलब है बड़े जुड़े हुए मन नाल इन्हें राम की धुन लाई होनी है। प्रहलाद राम राम जपदा सी, इस धुन दे मगन होया होना। हुण 80 साल का बुढ़ा हरनाकश अपने बच्चे नूं कहंदा है भी तू जप जल हरनाकश थल हरनाकश, ते 5 वरियां दा बच्चा कहंदा बापू ये ते बिल्कुल बच्चियां दी गल होई, अचेतपणे की गल है, तुसी जल थल विच कित्थे हो? ये ते जल है राम, थल है राम। तो ये मासूम बच्चा बंदगी करदियां करदियां सुचेत हो गया, सावधान हो गया। ध्रुव बंदगी करदियां करदियां नाम जपदियां जपदियां सावधान हो गया। कहते ने इन्हां दोवां नूं प्रेरणा अपनी मावां तो मिली सी। प्रहलाद नूं प्रेरणा अपनी मां तो मिली, ध्रुव नूं प्रेरणा भी अपनी माता तो मिली। मैं तो इत्थे तक पढ़िया बाबे फरीद नूं प्रेरणा भी अपनी मां तो मिली। बच्चियां नाल खेड रहा सी, ते फरीद दी मां जो सूफी ख्यालां दी सी, ते सूफी घराने दा उन्हां दा जन्म सी। कहन लगी अपने पुत्र नूं भी जरूर खेडिया कर, पर थोड़ा जिहा समा कढ़ के खुदा की बंदगी भी करिया कर। 8.5 साल दे फरीद ने कह दिता मां नूं, बंदगी ते मुशक्कत है, मेहनत है, ते जे मेहनत करिए तो खुदा देगा कि कम है। दरअसल है ये भी कम। साहब गुरु रामदास जी कहते हैं हों मूर्ख कारे लाया नानक हर कम है। बई नानक नूं उस परिपूर्ण परमात्मा ने अपने काम ते ला छड़िया, हरी हरी करन ते ला छड़े। हों मूर्ख कारे लाया नानक हर कम है। यह भी एक कम है, और कमां दे चों बिखड़ा कम है, कमां दे चों महान कम है। और इसे नूं कहने मुशक्कत सफल हो गई, जिन्नी नाम ध्याया गए मुशक्कत का। मुशक्कत कहते मेहनत नूं, परशियन दा लफ्ज़ मेहनत, तपस्या, साधना, बड़ी करड़ी मेहनत। तो फरीद कहता है मां मेहनत करिए और खुदा वास्ते करिए, खुदा देगा कि। दरअसल मासूम बच्चा उन्हें मेहनत खुदा वास्ते नहीं है। जे रब नूं वड्डा वड्डा आखीए तो साडे वड्डा वड्डा आखण नाल रब नहीं वड्डा हुंदा, वो है ही वड्डा। ते जे असीं सारे मिल के उसनूं छोटा छोटा आखण लग पईए तो साडे कहण नाल वो छोटा भी नहीं हुंदा। जे सब मिल के
आखण पाए वड्डा न होवे घाट न जाए। सारे मिल के कहण वड्डा है, साडे आखण नाल थोड़ी वड्डा है ही वड्डा हो गया। कई बंदियां दी वडियाई साडे आखण करके 150 बंदे कहण लग पैंदे ने गुरमुख है, संत है, महात्मा है, बड़ा सेवक है, गुणी है, ज्ञानी है। 100 200 400 बंदा कहण लग पैंदा, उहदी गल बन जांदी है। ते हुण 100 200 400 500 1000 बंदा कहण लग पिया बेईमान है, ठग है, चोर है, इते कुछ नहीं, इते भ्रष्ट है, इते दुराचारी है, गल रह जाती है। कईयां दी महिमा सिर्फ मनुखां दी ज़बान दे उत्ते, मनुख जो कुछ कहन वही कुछ नहीं। साहिब कहंदे परमात्मा इस तरह नहीं कि असीं सारे मिल के वड्डा वड्डा कहीए ते वड्डा है ते ना आखीए ते वो फिर छोटा है, ऐसी गल नहीं। उसनूं वड्डा वड्डा जो आखदा है वो आप वड्डा हो जाता है, इतनी गल है। उसनूं लोड़ नहीं है। जिहड़ा उसनूं निर्वैर आखदा है वो आप निर्वैर हो जाता है, जिहड़ा उसनूं निर्भव आखदा है वो आप निर्भय हो जाता है, जिहड़ा उसनूं अकाल आखदा है वो आप समय तो परे हो जाता है, जिहड़ा उसनूं दयाल आखदा है वो आप दया दी मूर्ति हो जाता है, जिहड़ा उसनूं सर्ब कला का ज्ञाता कहंदा है वो आप सर्ब कला का ज्ञानी हो जाता है। परमात्मा दे गुणां दा उचारण करां, अपने गुणां नूं वधाना है, बस इतनी गल है। उन्होंने कोई वडियाई की लोड़ नहीं भी असीं उसकी पूजा करिए, असीं उसकी कोई प्रतिष्ठा करिए, वो साडे आसरे ते नहीं खड़ा। हाँ, जो उसकी वडियाई करते हैं, जन नानक सतगुरु पूजया तिन हर पूज करा, वो भी महिमा योग हो जाते हैं, वो भी वडियाइयां दे मालिक बन जाते हैं। पर यह मासूम बालक इसने अपने ढंग नाल गल करनी है, मां खुदा दी बंदगी करिए, मेहनत करिए ते देगा की खुदा। मां सोची पै गई हुण बंदगी विच लाना है इसनूं। कदी कदाई कोई मां ऐसा सोचती है। और इस संबंध विच गुरु ग्रंथ साहब विच बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ लिखा है। खुलासा पूर्वक किसी वक्त रखांगा थोड़े सामने। कदी कदाई कोई सोचती है, कहण लगी बच्चा वो जिहड़ा खुदा है उन्हें गुड़ देना है, उन्हें लड्डू देने ने, उन्हें शक्कर देनी है, तू पढ़ते सही, तो बंदगी करते सही। तो फरीद कहंदा अच्छा ऐसी गल है, तो फिर मैं कल तो पढ़ांगा। आरंभ कर दी, मुसल्ला विछा के, मुसल्ला जिहदे उत्ते बैठ के नमाजी नमाज पढ़ते हैं, उन्हें नमाज अखां मीट के पढ़नी शुरू की थी ते मां ने थल्ले शक्कर रख दी। नमाज तो बाद वो मुसल्ला समेटदा है, शक्कर मिली हुई उसनूं प्राप्त हुई, हैरान रह गया। कहंदा खुदा ते बड़ा इतबारी है, इधर बंदगी करो इधर दे देंदा। बोला ए बच्चा, अचेत ए बच्चा। इन्हें फिर दूजे दिन पढ़ी, मां ने थल्ले मिठाई रख दी। तीसरे दिन पढ़ी, मां थल्ले लड्डू रख देंदी, गुड़ रख देंदी। रोज इसनूं वस्तु मिल जाती है, इखड़े मत्थे रोज पढ़दा है। अज मां बाहर पानी भरन चली गई, मुल्तान की गल, मरूथल की गल, रेतले टिबियां की गल। रेतले इलाका है मुल्तान, ते गर्मी बहुत, पानी घट, विचारी दूर किधरे पानी लैन गई। नमाज का वक्त हो गया ते फरीद नमाज पढ़न लग गए। अज रब दी नेक फरीद दी मां नूं ते ख्याल आया भी बच्चे ने नमाज शुरू कर दी होनी है, तो मैं तो भुल गई आज। हुण इसने कल तो नहीं पढ़नी, मैं तो शक्कर रख के नहीं आई, मैं तो लड्डू रख के नहीं आई। पर अज लड्डू खुदा ने आप ही दे दिता। नमाज पढ़दियां पढ़दियां मन टिक गया, ऐसा मन टिकया कुछ रस बन गया, कुछ आनंद बन गया। अज नमाज पढ़न तो बाद मुसल्ला समेटिया है, पर शक्कर चुकन का ख्याल भी कोई नहीं, तो अज शक्कर है भी कोई नहीं, अज कोई नहीं ख्याल। इस जीवन का इस वास्ते बार बार ख्याल आता है कि मनुख नूं परम जीवन की प्राप्ति नहीं हुई। संसार के रसां का बार बार चिंतन इस वास्ते आता है कि अजे परम रस की झलक बंदे नूं नहीं मिली। अज कोई परम रस फरीद नूं मिल गया, शक्कर भुल गया, गुड़ भुल गया, मिठाई भुल गया।
बैठ गया एक पासे, कहता मां भी कमाल दी है, गुड़ दे बहाने रब नाल जोड़ छड़िया, मिठाई दे बहाने। मां तू धन है, तू झूठ ते बोलिया भी खुदा शक्कर देंदा है, पर तेरे झूठ ने मैनू सच नाल जोड़ दिता, तेरे झूठ ने बड़ा परम आनंद बना दिता। कहने ने मस्ती च बैठा, मां आई, वो पानी का घड़ा एक पासे रख के देख के दंग हो गई भी फरीद का चेहरा कुछ हो रहा है, अखां कुछ होर ने। कोल आई, घबराई हुई ते कहती है बच्चिया कोई गल नहीं, अज मुसल्ले दे थल्लों मिठाई नहीं ना लभी, खुदा मैनू दे गया सी। ऐ लै, तू औखा क्यों होना है, तू उपराम क्यों होना है, खुदा मैनू दे गया सी। तो फरीद कहना मां पहले तेनू दे जांदा होवेगा, अज ते मैनू ही दे गए, अज वाकई मैनू दे गए। हुण तैनू शक्कर मिठाई देण दी लोड़ नहीं, रब आप ही दे गया। फरीदा शक्कर खंड निवात गुड़, माखियो मांझा दुध, सभे वस्तु मिठियां रब न पूजन तो। अज कुछ रब दा ऐसा रस आया है, मां जगत दा कोई भी पदार्थ तू रख दे मेरे सामने फिक्का है। हुण तैनू परचावण दी लोड़ नहीं, हुण तैनू तसल्ली देण दी लोड़ नहीं। फरीद नूं रब ने तसल्ली दे दी है, खुदा ने तसल्ली दे दी है। और उसने मां का धन्यवाद किया अपने शब्दों में, तिन धन जने दी माओ आए सफल से। जिन्हां दी जिंदगी सफल हो गई उन्हां दी मां धन है, पूजन योग है। ये बाबे फरीद के बचन ने, दबे शब्दों च मां का धन्यवाद किया, मां का शुकराना किया, मां का शुक्रिया अदा किया, इत्थे तक पहुंचाया है मां ने। बच्चा सुचेत हो जाता है अगर नमाज पढ़न लग पाए, बच्चा सुचेत हो जाता है अगर वाहिगुरू वाहिगुरू करन लग पाए। संसार का इतिहास गवाह है, प्रभु की बंदगी बच्चियां नूं सुचेत कर देंदी है। कलगीधर पातशाह के मासूम लाडले बड़े सुचेत ने, बड़े सावधान ने, बड़ी सियाणप के मालक ने, बड़ी जागृति के मालक ने। और उन्हां दी जिंदगी विच ये सियाणप, ये इलम, ये पवित्रता झलकदी, हिम्मत ते हौसला झलकदा। बच्चा अगर नाम जपन लग पे तो सुचेत हो जाएगा, बचपना सफल हो गया। क्योंकि साहब कहना नाम तो बिना तीन ही अवस्था व्यर्थ, ते तीन अवस्था क्यों व्यर्थ हो जाती हैं? बच्चा अचेत है, जवान वासना दे च, बुढ़ा हंकारी है। अचेत पने करके बच्चा रस तो वांझा रह जाता है, वासना करके जवान गुरु तो दूर हो जाता है, हंकार करके बुढ़ा नेड़े नहीं आता। और ये तिना थानू कमजोरियां मिलणगियां बड़ियां परबल। अगर बच्चे इत्थे आके खेडन लग पैन ना तो कोई बहुत गुस्से होने की लोड़ नहीं, होती सुभाव प्राकृतिक कमजोरी है, अचेत ने। बालक बुद्ध अचेत, ये प्राकृतिक है, ये कुदरती है। पर जे हुण ओ सिर्फ वाहिगुरू वाहिगुरू ही करन लग पे, क्योंकि कथा कीर्तन नूं समझण दी अजे उसकी बुद्ध नहीं है, तो अचेत है, वो सिर्फ वाहिगुरू वाहिगुरू ही करन लग पे, इतना ही। अजे वो कीर्तन नूं नहीं समझ सकता, अजे वो जपजी नूं नहीं समझ सकेगा, अजे वो सुखमनी की गहराइयां नूं नहीं समझ सकेगा, अजे वो जाप साहब के फिलसफे तक नहीं पहुंच सकेगा, अजे वो संस्कृति श्लोकां की गहराई विच नहीं जा सकेगा। फिर की करे? बचपना व्यर्थ चला जाए? नहीं, वाहिगुरू वाहिगुरू करे, बस इतना ही। क्योंकि प्रहलाद ने यही किया सी। प्रहलाद कोई, उन्हें 4 वेद नहीं पढ़े, उन्हें 6 शास्त्र नहीं पढ़े सन, उन्हें सिमरतियां नहीं पढ़ियां, उन्हें उपनिषद नहीं पढ़े। और 5 साल का बच्चा इन्नियां वड्डियां वड्डियां धर्म ग्रंथां नूं, किताबां नूं किस तरह पढ़ सकता है? सिर्फ राम राम करता सी, सिर्फ राम राम। नारद मुन उपदेशिया ध्रुव नूं नारद ने एक मंत्र दे दिता बई तू गोबिंद गोबिंद जप, बस बासदेव बासदेव जप, रहन दे बाकी गल्लां। ते हुण 5 वरियां दा ध्रुव लंबे चौड़े ग्रंथ कित्थे पढ़ सकदा सी? साहिब गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करदे ने, पढ़िया होवे गुनेगार ता ओमी साध न मारिए। पढ़िया होवे गुनेगार। धार्मिक दुनिया विच 2 तरह के बंदे ने।
और दोहां नूं बकायदा नाम दिते जाते हैं भी ये तो उपाध्याय है, चतुर्वेदी है, शास्त्री है, पढ़ा लिखा है, धर्म ग्रंथां का ज्ञानी है। तो दूजा हुंदा सिर्फ ओम ओम की धुन, होर कुछ नहीं जानता। किसी धर्म ग्रंथ का वो ज्ञानी नहीं, पंडित नहीं, सिर्फ ओम ओम कहता है। तो हुण साहिब कहंदे पढ़िया होवे गुनहगार तां ओमी साधना मारी है। एक बहुत बड़ा पढ़ा लिखा है ते होवे गुनाहगार, सजा खावेगा, मार खाएगा। पर उहदे मुकाबले ते जिहड़ा ओम सिर्फ ओम ही कहता, होर कुछ पढ़ भी नहीं सकता, कह भी नहीं सकता, तो साहिब कहते बख्शिया जाएगा, कबूल हो जाएगा अगर उसकी सुरत जुड़ गई है एक नाम बच। तो बच्चा वाहिगुरू वाहिगुरू कर सकता है, और लंबी चौड़ी गल तो नहीं। पर मैं इतनी अर्ज करते हैं बच्चे का ध्यान छेती जुड़ सकता है, क्योंकि अजे बहुती गंदगी अंदर जमा नहीं हुई, अजे संस्कार बहुते बिखरे नहीं है, अजे मन बहुता खिंडिया नहीं है। तो जे इतना इतना ही करन लग पे 5-10 मिनट वाहिगुरू वाहिगुरू सुचेत हो जाएगा। तो ज्यों बच्चा सुचेत होया, जिंदगी सफल हो गई, जीवन सफल हो गया, संसार पे आया सफल हो गया। दूसरा जवान, इहदी बुनियादी कमजोरी है धन जोबन दी पकड़, धन ते जोबन दी प्रबल वासना। संसार दे विच धन दी पकड़ ने चोरी नूं जन्म दिता है, रूप दी पकड़ ने यारी नूं जन्म दिता है, और समुची दुनिया दे चोरी यारी मौजूद है, हटदी नहीं पई कानून दे आउंदे होया भी। समुची दुनिया दे विच रूप की पकड़ करके चोरी है, और धन की पकड़ करके चोरी है, रूप की पकड़ करके यारी है, दुराचार है। तो संसार विच दुराचार ते चोरी मौजूद है। मैं देखदा गरीब देशों के चोरी प्रधान है, अमीर देशों च यारी प्रधान है। अपनी अपनी कमजोरी है, और है समुची दुनिया च मौजूद है। और इस तरह का उपद्र जवानी के तल पर ज्यादा है, क्योंकि बड़ी प्रबल वासना है। तो जिहड़ी वासना है वह धन ते जोबन दी है, होर कुछ नहीं। सहज गुरु नानक देव जी महाराज का फैसला, तीजे पैरे रहन के वणजारिया मित्रा, धन जोबन स्यों चेते। बार बार चेते आउंदा जोबन या धन, और कुछ नहीं चेते। बार बार अंदर परिक्रमा करते हैं धन या रूप। जब रूप की पकड़ आउंदी है तो मनुख के अंदर दुराचार की भावना पैदा होती है, तो जब पराए धन की पकड़ आउंदी है तो फिर फेरियां जन्म लैंदियां, फिर चोरी जन्म लैंदी है, और समुची दुनिया च ये मौजूद है। ये गल वखरी है, किसी मनुख को मौका ना मिले कि वो चोर यार अगर कोई नहीं है, तो शास्त्रकार कहने का यह मतलब नहीं कि वह वाकई चोर ते यार नहीं, उन्होंने चोर ते यार बनने का मौका नहीं मिले। मौका मिल जाए तो गल बन जाएगी। और होर भी मैं अर्ज करते हाँ, संसार दे विच कोई छोटा ते वड्डा बदमाश नहीं होंदा, कोई छोटा ते वड्डा ठग नहीं होंदा, कोई छोटा ते वड्डा चोर नहीं होंदा, कोई छोटा ते वड्डा गुंडा नहीं होंदा। ये सारे इक्को ही समान ने। हो सकता है सियाणे ना सहमत होवन भी सारे किस तरह एक हो सकते हैं। एक बंदे ने कतल कर छड़िया, एक ने किसी को सिर्फ थप्पड़ ही मारिया या गाल कड्डी है, ये दोवें इक्को सार किस तरह हो सकते हैं। एक ने सिर्फ कख की चोरी की है, एक ने लखां की चोरी की है, ये बराबर किस तरह हो गए। पर समाजिक ढांचा ते धार्मिक ढांचा कहता नहीं बराबर ही ने, कख की चोरी ते लख की चोरी इक्को ही है। दरअसल कोई छोटा वड्डा चोर नहीं होंदा, कोई छोटा वड्डा बदमाश नहीं होंदा, कोई छोटा वड्डा गुंडा नहीं होंदा, कोई छोटा वड्डा ठग नहीं होंदा। ये सारे इक्को जिहे होंदे ने। हाँ, चोरी छोटी वड्डी हो सकती है, ठगी छोटी वड्डी हो सकती है, बदमाशी छोटी वड्डी हो सकती है। बदमाश छोटे वड्डे नहीं होंदे, चोर छोटे वड्डे नहीं होंदे। जिन्हों छोटा मौका मिलिया उन्हें छोटी चोरी की, जिन्हों वड्डा मौका मिल गया उन्हें वड्डी कर छड्डी। गल तो इतनी मौके दी है ना। जिसनों छोटा मौका मिलिया उन्हें छोटी बदमाशी की, जिन्हों वड्डा मौका मिल गया उन्हें वड्डी की। ते वड्डा मौका मिलता है वड्डे बन के। इस वास्ते वड्डे वड्डे मनुख मामूली बदमाशियां नहीं करते। संसार का इतिहास पढ़ो तुसीं दंग रह जाओगे।
सता दे मिलदियां, ताकत दे मिलदियां मनुख भ्रष्ट हो जाता है, पहले नहीं, क्योंकि पहले हो भी नहीं सकता। कमजोर बंदा की कर सकता? कुछ भी नहीं कर सकता। ताकत दे मिलदियां खुल मिल जाती है, तो खुल दे मिलदियां बंदा बदमाश बन ही जाता है, बड़े बड़े अनर्थ करता है। संसार के इतिहास में वड्डे वड्डे अनर्थ वड्डे मनुखा ने कीते, छोटिया ने नहीं, वो कर भी नहीं सकते। किस तरह करनगे? करने की खुल ही नहीं है, करने की समर्था ही नहीं है, करने वास्ते ताकत ही नहीं है कोल। तो कहते ने छोटी चोरी ते वड्डी चोरी हो सकती है, छोटी बदमाशी ते वड्डी बदमाशी हो सकती है, बाकी बदमाश सारे एक हो जाए। जिन्हों छोटा मौका मिलेगा उन्हें छोटी करनी है, जिन्हों वड्डा मौका मिलेगा वो वड्डी करेगा। मैं हिंदुस्तान में देखदा, बाहर का मैनू तजर्बा नहीं है। जिन्होंने छोटा मौका मिलता है ना, वो गुरुद्वारे च कोई भांडे लै गए, कोई रसद पानी चुरा के लै गए, जुतियां चुरा के लै गए। तो जिन्होंने वड्डा मौका मिलता पूरी गोलक ही हड़प कर जाते हैं। मौके की गल सारी गोलक ही गुरु की हड़प कर जाती, गल तो सारी मौके की। हुण जिन्हों छोटा मौका मिले उन्हें छोटी गल की, जिन्हों वड्डा मौका मिले उन्हें वड्डी कर छड्डी। जिन्हों छोटा मौका मिले उन्हें छोटी बदमाशी की, जिन्हों वड्डा मौका मिले उन्हें वड्डी की। जद मैनू कोई कहंदा ना भी फलाना बंदा बड़ा शरीफ है, सियाणा है, गुरमुख है, त्यागी है, पता नहीं किधरे तुसीं मैनू कठोर ना समझ लेना, मैं नहीं मनदा हुंदा। मैं कहा तेरे कोल किहड़ी कसवटी है, किहड़ी कसवटी ते तूं परख लिया? कहंदा नहीं, कभी इसने कोई बदमाशी की नहीं, कोई अनर्थ किया ही नहीं। तो उदों मैं कहना हुंदा मौका नहीं बनिया। गल तो इन्नी है, मौका नहीं बनिया, कुछ मौका नहीं मिले। संसार दे जिहड़ी बहुती शराफत है, अगर किसी के पल्ले च वो मौका ना मिलन करके, मौका उन्होंने मिलिया नहीं बदमाश बनन दा। और हुण सियाणे कुछ होर कहण लग पैना कि जिहड़ी शराफत है ना, ये ते कमजोर बंदियां कोले ते बदमाशी ताकतवर बंदियां कोले। कदी बगौर मुताला करना, क्योंकि कमजोर बंदे ने की बदमाशी करनी, कर ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो शराफत कमजोरां कोल, बदमाशी ताकतवरां कोल, तो फिर दुनिया दे झंडा ते बदमाशी का ही झुलना है। शराफत का किस तरह झुलेगा? झुल ही नहीं सकता। दुनिया दे शराफत का झंडा उदों झुलेगा, दुनिया दे शराफत उदों पूजी जाएगी जब शराफत ताकतवर बंदे कोल होवे ताकतवर लेकिन शरीफ होवे उसदे कोल ताकत लेकिन भजनीक होवे उसदे कोल पूरी ताकत लेकिन भले मानसी दी अमूर्ति होवे, शराफत दी अमूर्ति होवे, उदों संसार दे शराफत वधेगी। अजे तो शराफत कमजोर बंदियां कोल है ते बदमाशी जिहड़ी है ताकतवर बंदियां कोल है। ते जिन्हां शरीफ बंदियां कोल शराफत है वो भी कमजोरी करके, जे ताकतवर हो जान ते उन्होंने भी शराफत नूं परे चुक के सुटना, वो भी बदमाश हो जाएंगे। और ये बिल्कुल सच्चाई थोड़े सामने रख रहे हैं। जब मेरे सामने कोई बहुत बड़ा दावा करे नहीं जी ये तो बहुत बड़ा त्यागी है, बड़ा शांतमई है, कभी किसी नाल लड़िया नहीं, कभी किसी नाल झगड़िया नहीं, बिल्कुल शांत है, उदों मैं उसनों कहना हुंदा भी दरअसल माचिस की डब्बी है और कुछ नहीं, तीलियां अंदर पईयां ने, जरा रगड़न की देर है, अग प्रगट होगी। तो एवं भरम भुलेखे च सारी अग अंदर है, थोड़ी जी रगड़ की देर है, जिवें पत्थरां दे अग है, दो पत्थर रगड़ी ते अग निकल गई। बस थोड़ा जिहा टकराव हो जाए फिर तेनों पता चलेगा कितनी शांति है इसके अंदर, फिर तेनों पता चलेगा कितना क बर्दाश्त का मादा है, ये कितना उछलता है। फिर तू देखें इतने दबा के बैठा है, बस इतनी गल है। इतने बारूद का ढेर है, थोड़ी जी चिनगारी लैके जाओ फिर पता चलेगा। चिनगारी नेड़े नहीं गई, तुसी कहंदे पए नहीं ये खाक की ढेरी है, ये बड़ा निर्माण है, ये बड़ा महान है, कतई महान नहीं, ये बारूद की ढेरी है, थोड़ी जी चिनगारी की ढेर, ये भड़क उठेगा, ये तड़प उठेगा और इसने बड़ी बड़ी अग ला देनी है। कई मनुखा ने जो अग नहीं लाई तो मौका नहीं मिला, जो चिनगारी नेड़े नहीं आई, बस चिनगारी नेड़े आने की देर है, बड़ा बड़ा अनर्थ कर देंगे, बहुत कुछ कर देंगे। तो खैर मैं अर्ज कर रहा सी, शराफत कमजोर बंदियां कोल है समुची दुनिया दे अज भी, ते बदमाशी ताकतवर बंदियां कोल है, ठगी ताकतवर बंदियां कोल है, जुल्म ताकतवर बंदियां कोल है, बेइंसाफी ताकतवर बंदियां कोल है। इस वास्ते समुची दुनिया दे मनुख की जिहड़ी समस्या है त्यों दी त्यों बनी हुई, क्योंकि जिसने मनुख दीयां समस्याओं का समाधान करना है, मनुख के सवालों का जवाब देना है,
और इस तरह के ਜਿਹੜੇ ਤਾਕਤਵਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉੱਤੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ। खैर, तो जवानी की अपनी एक प्रबल कमजोरी है कि पराए धन की पकड़, पराए रूप की पकड़, पराए धन की पकड़ चोरी के अड्डियां नूं जन्म देंदी है, पराए रूप की पकड़ यारी के अड्डियां नूं जन्म देंदी है। और समुची दुनिया विच मौजूद ने। दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं जिथे इस तरह के दोवें अड्डे मौजूद ने। ये दूर नहीं हो सके, एक पासे नहीं हो सके। कारण ये बड़ी प्रबल है। तीजे पैरे रहन के वणजारिया मित्रा, धन जो बन स्यों चित, हर का नाम न चेतई वणजारिया मित्रा, बद्धा छुट्टे जित। धन ते जोबन की पकड़ हरी का नाम किथे चितवन करन देंदी। कौन? जवानी दे विच रब दा नाम लवेगा। बाबा फरीद कहंदे ने, उन्हां दा बड़ा कीमती एक श्लोक है, श्लोक फरीदां दे विच, फरीद जी दे श्लोकां दे विच। फरीदा उमर सुहावड़ी संग सुवनड़ी दे, विरले के पायन जिना प्यारे ने। जवान अवस्था होवे, खूबसूरत तन होवे और तंदुरुस्ती होवे, बाबा फरीद कहने विरले की रसना तो खुदा खुदा निकलता, नहीं तो कौन लेंदा, कौन बंदगी करता। अक्सर गुरुद्वारियां च रोजमरिया की हाजरी वेखनी होवे ते बुढ़े बंदे मिलणगे थानू। हड़ लंघ गया, हुण आए ने, तो साहिबां दा फैसला उम्र सुहावड़ी संग सुवनड़ी दे, विरले के पाए ने जिना प्यारे ने। धन ते जोबन की पकड़ नाम नहीं जपण देंदी। ते जे नाम जपेगा तो पकड़ धन जोबन की रहेगी और कुछ नहीं। गुरु कोलों धन मंगेगा या कुछ और संसार ही, और कुछ नहीं। और गुरु ग्रंथ साहब दीयां कुछ फैसला कुन पंक्तियां मैं थोड़े सामने रखा। भगत नामदेव जी महाराज का एक बड़ा कीमती शब्द है। जापदा उन्होंने ते सवाल किया गया बई असी किस तरह अंदाजा लगाइए इस बंदे कोल रब है। ये बंदा परमात्मा का रस माणदा है, इहदी बिरती रब दे नेड़े है। वो कहंदे ने जिहड़ा मन करके इन्हां दो गल्लां दा त्यागीए परमात्मा उहदे कोल है, और लंबे चौड़े फैसले करने की लोड़ नहीं। तो गुरु ग्रंथ साहब दीयां पंक्तियां मैं थोड़े सामने रखा। पर धन पर दारा पर हरि, ताके निकट बसे नर हरि। भगत बाणी श्री नामदेव। भगत जी कह रहे हैं जिहदे मन दे पराए रूप की कोई पकड़ नहीं, पराए धन की कोई पकड़ नहीं, निश्चय करके जानो उत्थे रब बैठा है, उहदे कोल है रब। धन वेख्या है, चोरी की भावना नहीं, रूप वेख्या है, वासना नहीं। पर धन पर दारा पर हरि, ताके निकट बसे नर हरि। इस्लाम ने कोशिश की थी कि जिहड़ा चोरी करे उहदे हथ कट्टो। अज भी अरब देशों, सऊदी अरब दे विच, लीबिया दे विच, कुवैत दे विच और इस तरह के छोटे छोटे होर अरब देशों के चोरी की सजा हथ कटना है। दुराचार की वासना मनुख के अंदर ना पैदा होवे तो रूप ते बुरका पा दिता गया, इस्त्री नूं बुरका दे दिता गया ताकि मनुख ना वेखे कि मनुख के अंदर कोई गलत भावना ना पैदा हो। उन्होंने ये इलाज लगे भी इस्त्री नूं बुरका पड़दा ते चोर दे हथ कट दो, इन्हां दो मसलियां का हल हो जाएगा। क्योंकि संसार दे चोरी यारी ते हटानी और की है। पर मैं इतनी अर्ज करदे मौजूद ने उत्थे भी, जिथे हथ कट्टे जाते हैं उत्थे भी चोरी मौजूद है, जिथे इतना भयंकर पड़दा है उत्थे भी दुराचार मौजूद है और रज के मौजूद है, बाकी देशों नालों ज्यादा। क्योंकि जिस चीज़ नूं इस ढंग नाल बाहरों दबावांगे उत्ते बहुत उछलेगा, बाहरों इसका कोई इलाज भी नहीं है, तो इलाज अंदरों। पर धन पर दारा पर हरि, ताके निकट बसे नर हरि। नामदेव जी महाराज के ये बोल जब मैं पढ़ रहा से उदों सुभाविक महात्मा तुलसी की दुहावली पई सी मेरे कोल हिंदी की, ते पढ़दियां एक दोहरा सामने आया ते नामदेव जी नाल मेल खांदा सी। तुलसी कहते ने पर धन को मिट्टी समझे पर तिरिया मात समान, इतने पर हरि ना मिले तो तुलसी दास जवान। कहते मैं जामन हाँ उस बंदे दा जो
ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਵੇਖੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਲਬ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਾਇਆ ਰੂਪ ਵੇਖੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਲਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਰੱਬ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਲਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜ਼ਾਮਨ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਮਿਲਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੋਸ਼ੀ। ਕੋਈ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜ਼ਾਮਨ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰਮ ਰਸ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ, परम आनंद जरूर मिलेगा। बच्चा नहीं पहुंच सके उस परम आनंद तक अचेत पणे करके, जवान नहीं पहुंच सके उस परम आनंद तक वासना करके, धन जौबन की पकड़ करके। और ये वासना नाम तक सुरत पहुंचण नहीं देती। पर धन पर दारा पर हड़ी